نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بسترا ز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما یک نظر کن سوئے ما. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور میں نے اپنی شعر و شاعری کی جب ابتدا کی تھی تو اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو آپ تمام احباب کو میں بتاتا چلوں. سید اشرف صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امار اشرفی وعلیکم السلام. اللہ خوش رکھے آپ سبھی لوگوں کو آباد رکھے. عبد المتین اشرفی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صادق بھائی ریتیا ہمت نگر وعلیکم السلام. محسن وعلیکم السلام. اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے. ماشاءاللہ بس کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کی بارگاہ میں آیا میں. شکیل جانک والا ہمت نگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سب کو خوش رکھے آباد رکھے. تو میں کہہ رہا تھا وعلیکم السلام رفیق بھائی گاری آدھار. اللہ خوش رکھے تم لوگوں کو سبھی کو سلامت رکھے. تو یہ شاعری کا شوق کہاں سے پیدا ہوا مجھے؟ حالانکہ میں شاعر تو مجھا ہوا شاعر تو نہیں ہوں اور نہ فن شاعری سے مجھے واقفیت ہے، لیکن ہاں بزرگوں کی دعائیں ہیں اور پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین اور سرکار مرشد برحق حضور صوفی ملت کی دعا ہے، ان کا کرم ہے کہ تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں اور کہہ لیتا ہوں میں. اور جہاں تک ردیف و قافیے کی بات ہے تو وہ عشق و محبت کی بات ہوتی ہے. جو کہنا چاہتا ہوں اس کا لحاظ اتنا میں ضرور رکھتا ہوں کہ شعر و شاعری کا فن تو نہیں پیش کر سکتا، اتنا احتیاط ضرور رکھتا ہوں کہ کہیں سے کوئی ایسا نازیبا کلمہ نہ نکلے جس سے کسی کی اہانت ہو، توہین ہو اور
दीगर मामला से अपने आप को बचा के रखना। तो हुआ क्या, मैं हुजूर शेखुल इस्लाम के साथ और वालिद बुजुर्गवार सरकार सूफी मिल्लत के साथ बंबई जा रहा था। उस जमाने में महानगरी एक्सप्रेस से बंबई जा रहा था और मेरे मोहसिन जनाब अनवर रायपुरी साहब भी साथ में थे। AC 2 टायर में थे हम लोग। एक केबिन थी 4 सीट की, तो बाजू वाली सीट खाली पड़ी हुई थी, साइड लोअर वो खाली पड़ी, तो मैं बैठा हुआ था। तकरीबन असर का वक्त हुआ तो मैं कुछ लिख रहा था, तो हुजूर शेखुल इस्लाम उठे नमाज के लिए ट्रेन में। मुझे देखा साइड वाली सीट पे, पूछा बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा शायरी कर रहा हूं और एक मिसरा हुआ है, शेर नहीं बन पा रहा है मुझसे। तो मुस्कुराए और फरमाए कोशिश करो हो जाएगा। ये हज़रत का जुमला था कि कोशिश करो हो जाएगा। ठीक है, फन से वाकफियत नहीं है तो इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कह दिया उन्होंने कि कोशिश करो हो जाएगा, तो यकीन था कि मेरे मोहसिन ने और मेरे मुर्शिद ने कहा है तो होगा जरूर। क्योंकि शेखुल इस्लाम की वो जात है कि अशरफ ने अपनी लाइफ में सिर्फ अपना आइडियल अगर बनाया है किसी को, तो वो जात है हुजूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन की। वही मेरे मोहसिन रहे, वही सरपरस्त है, वही निगहबान है, वही मेरे आइडियल है। और मैंने अपनी जिंदगी को कोशिश किया हद तक इम्कान कि उनके नक्शे कदम पर मैं कायम रहूं और कोशिश करता हूं कायम रहने की। और ये उन्हीं की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा है, जो कुछ भी है अच्छा चल रहा है। तो हजरत शेखुल इस्लाम खैर असर की नमाज से फारिग जब हुए तो अनवर रायपुरी साहब से कहा कि अनवर, अशरफ मियां शेर व शायरी की दिलचस्पी रखते हैं और मैंने देखा कि वो शेर लिख रहे हैं। कौन सा शेर है, मनकबत का है कि गजल का है कि नात का है, क्या लिखना चाहते हैं वो? उन्होंने बस कहा कि मैं शेर लिख रहा हूं और मैंने कह दिया ठीक है, मेहनत करो हो जाएगा, जब बुलाओ बस पूछूं सुनूं क्या है। हजरत शेखुल इस्लाम ने जिस वक्त मुझे बुलाया और पूछा कि बेटा कुछ हुआ कि नहीं, मैंने कहा 2 शेर हुए हैं। क्या हुए? 2 शेर हुए हैं। पता नहीं वो शेर है कलाम के तहत यानी अच्छा है फन के एतबार से और बेहतर है या क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है। ठीक है, सुनाओ जरा सा। तो जो मिसरा मेरे दिलो दिमाग में था जिस पर मैं शायरी करना चाहता था, उसको सुनने से पहले आप सुने। तो पहला शेर जो हुआ, मैंने मनकबत लिखी अपने जद्दे आला गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला की शान में। पहला शेर जो मैंने लिखा वो ये था कि सुल्तान अशरफ की बारगाह में कि तेरा हम नाम हो। लिखा क्या मैंने कि तेरा हम नाम हो, यह मुझ पे करम है तेरा। तेरा हम नाम हो, यह मुझ पे करम है तेरा। मेरे अशरफ तू भरम रखना हमेशा मेरा। मेरे अशरफ तू भरम रखना हमेशा मेरा। ये शेर सुना, हज़रत शेखुल इस्लाम ने दुआएं दी और कहा अगला शेर तुमने और क्या कहा? मैंने कहा जो मिसरा था उस पर मैंने मिसरा लगाया है और वो मुकम्मल वो शेर समाप्त फरमाए। वो ये था, मैंने सरकार सुल्तान अशरफ की बारगाह में इस शेर को कहने के बाद अर्ज किया कि तेरा हम नाम हूं, ये मुझ पे करम है तेरा। मेरे अशरफ तू भरम रखना हमेशा मेरा। और कहा मैंने क्या कि दूर रखती है मुझे तुझसे मेरी मजबूरी। दूर रखती है मुझे तुझसे मेरी मजबूरी। दिल नहीं चाहता दर छोड़ के जाऊं तेरा। दिल नहीं चाहता दर छोड़ के जाऊं तेरा।
इतना कहना था कि हज़रत शेख इस्लाम ने मेरे सर पे अपने हाथ को रखा और दुआएं दी। वो कहा इंशाअल्लाह तुम्हारी ये मनकबत पूरी हो जाएगी, और हजरत ने खूब दाद दी और दुआएं दी। तो ये दुआओं का फिर असर ये रहा कि फिर मैंने पूरी मनकबत पाक को 2 रोज लगे, उस जमाने में 2 रोज लगे उसको मुकम्मल करने में, और फिर करके फिर मैंने अनवर रायपुरी को भी सुनाया और हज़रत शेख इस्लाम को भी सुनाया। तो आज इत्तेफाक से देखिए ये ज़हन बन गया कि मैं लोग पूछते हैं ना कि वो आपको शेर व शायरी की दिलचस्पी कैसे पैदा हुई, तो दिलचस्पी पैदा होने की वजह यही है और सच है कि जब अपने बुजुर्गों के सामने इंसान अपनी बात को रखता है और उस पर बुजुर्गों की तायद हो जाया करती है, तो हौसले बुलंद होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, और फिर उन्हीं की दुआओं को लेकर के वो आगे भी बढ़ता है और बहुत से मराहिल फिर उसके हल भी होते रहते हैं। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान अजीम है और मखदूमी फैज़ान गौसे पाक गरीब नवाज का बड़ा ख़ास करम है। वालिद बुजुर्गवार सरकार पीर मुर्शिद हुजूर सूफी मिल्लत और सरकार शेखुल इस्लाम की बेपनाह दुआएं हैं कि आज तकरीबन 400 कलाम मेरे नात और मनकबत मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी बेहतरीन उस्ताद शायर से को उन तमाम कलाम को दिखलाने के बाद मैं उस कलाम को बहुत जल्द अपने दीवान को मैं मंजर आम पर लाने की कोशिश करूँगा। ताहिर अतरवाला, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। अल्लाह खुश रखे भाई, तुम्हारी वालदा को अल्लाह सेहत सलामती अता फरमाए। सिराज अहमद आखुन जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। सिराज भाई अल्लाह खुश रखे। यास्मीन आखुन जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। अल्लाह ताला सेहत सलामती अता फरमाए। माशाअल्लाह कनीज़ फातिमा, अल्लाह खुश रखे तुम लोगों को भी। जाकिर वसी वाला, जितने भी अहबाब इस वक्त मेरे रूबरू हैं, आज मैं फिर जैसा कि आपको मालूम ही है कि सूफी चैनल के ज़रिए 2 बातें लेकर के हाजिर आया हूँ। और गुज़िश्ता सैटरडे यानी शनिचर को इसलिए नहीं आ पाया था कि आप लोगों को मालूम था कि हुजूर सूफी मिल्लत के सबसे बड़े निवासे सैयद मोहम्मद हैदर उर्फ शादाब मियाँ की शादी की तकरीबात चल रही थी, और उनकी शादी जो है, उनकी शादी की तकरीबात किशोर शरीफी में थी। बारात भी किशोर शरीफी में जानी थी। हज़रत पीर तरीक़त सैयद असलम अशरफ अशरफी उल जिलानी की दुख्तर नेक अख्तर के साथ उनका अक़्द हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि ख़ानदान अशरफिया के बड़े ही जिम्मेदार अफराद और मोतबर लोग और खानवादे की जान कही जाने वाले, ख़ास करके मेरे निगहबानों में से, मोहसिनों में से एक नहीं, बहुत से लोगों ने शिरकत की। पूरा ख़ानदान हमारा जो किशोर शरीफ में आबाद है, जो बसखारी में आबाद है, जो सालेहपुर, सिंगारपुर, पैगंबर नगर, पूरे कामगार, पूरे शाहलाल, जायज़ शरीफ और लखनऊ में जो खानवादा आबाद है, कानपुर में जो खानवादा आबाद है, माशाल्लाह सारे के सारे लोग इस प्रोग्राम में, मेरा ननिहाल और दतियाल सब मिल करके हाजिर थे। बड़ी अच्छी गदरी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी की कोई कमी महसूस नहीं हुई। और क्योंकि खानवादा बहुत बड़ा खानवादा है और सब शरीक हुए और सबों की दुआएं रहीं। उनमें बिलखुसूस मेरे मामू जान रईसुत तहरीर शेख तरीक़त बद्र मारिफत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफी उल जिलानी अव्वल ता आखिर निकाह की सारी तकरीबात में आपकी शिरकत रही। और फिर उसके बाद वलीमे के दिन भी आपने मुकम्मल अपनी जिम्मेदारी और अपनी दुआओं से खूब नवाजा, और जिस तरह से एक निगरान होना चाहिए उस तरह से उन्होंने
बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत और बड़ी इखलास के साथ दुआएं देते हुए तमाम तकरीबात में शिरकत की और मेरे हौसले को, फैमिली के हौसले को उन्होंने बुलंद फरमाया। वहीं पर मुफक्किर मिल्लत के हज़रत सरकार सैयद हसन मुसन्ना अनवर, जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के सबसे बड़े साहिबजादे, सैयद मुहामिद अशरफ के बाद सबसे बड़े साहिबजादे, उनके बड़े साहिबजादे अम्मे मोहतरम हज़रत सैयद खालिद अशरफी जिलानी और अम्मे मोहतरम सैयद शाहिद अनवर, खानवादे के और भी दीगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तकरीबात में शामिल रहे और बड़ी ही उनकी शफ़क़तें, बड़ी मोहब्बत और बड़ा ही प्यार, बड़ा ही खुलूस हम सबों के साथ कायम दायम रहा। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे खानवादे के तमाम बुजुर्गों की मोहब्बत एक दूसरे के दिल में खूब से खूब तक पैदा फरमाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ खानवादे के अजीम अहबाब हमारे शरीक थे, किशोर शरीफ, बसखारी और दीगर जो हमारे खानवादे की फ़राद की शादी में शरीक थे, वहीं सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी आबादी की जो शाह मुक़द्दसा कि हमारे तमाम अहबाब, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतवस्सिलीन जो सरकार वालिद बुजुर्गवार हुजूर सूफी मिल्लत के ज़माने से हमें अपना प्यार, अपनी मोहब्बत देते चले आए, कसीर तादाद में बड़ी ही मोहब्बत, बड़े ही प्यार और बड़ी ही शफ़क़त के साथ हमारी आबादी के लोगों ने इन तमाम तकरीबात में शिरकत किया। मैं अपने तमाम किछोछे के रहने वाले ख़ानदान हो या गैर ख़ानदान हो, इन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना समझ करके मेरी दावत को कबूल किया और मुझे खिदमत करने का मौका दिया मेरी आबादी के लोगों ने। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ये मोहब्बत हम सबों के दिलों में हमेशा कायम हो दायम रखे। हज़रत सूफी मिल्लत अक्सर मुझे फरमाया करते थे कि ये ख़ानदान है जो तुम्हारा खूनी रिश्ते जिनसे है वो तुम्हारा ख़ानदान है, लेकिन तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारी आबादी के लोग हैं, तुम्हारी आबादी के लोग हैं, ये निज़ामुद्दीनपुर के लोग, ये नसरुल्लाहपुर के लोग, ये पश्चिम तरफ के लोग, ये बाजार के तमाम मुसलमान मोमिन मोमिनात, ये तुम्हारी बिरादरी के लोग। इनका ख्याल रखना, इनके गम में, इनकी मोहब्बत में, इनके प्यार में बराबर के शरीक रखना और उन्हें भी तुम अपने साथ शरीक रखना। यकीनन इसमें मेरा क्या है, कुछ नहीं, लेकिन मेरी आबादी के लोगों का बेहद प्यार, बेहद मोहब्बत मेरे पास अल्फाज नहीं उनका शुक्रिया अदा करने का। बस इतना ही कहूँगा अपनी आबादी के भी लोगों से कि ये मोहब्बत, ये प्यार, ये ऐसे ही सूफी मिल्लत की फैमिली के साथ आप कायम रखें। अगर कुछ मेरी खिदमत करने में, मैंने आपकी खिदमत करने में अगर कुछ कमी की हो तो आप मुझे माफ़ फरमाएं और दुआ करें मेरी सेहत के लिए, मेरे इल्म के लिए, मेरे जज्बे के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो जज्बा अता फरमाए, वो शौक़ अता फरमाए कि मैं अपनी आबादी के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ और उनके साथ अपने प्यार, अपनी मोहब्बत को शेयर कर सकूँ। मक़बूल हुसैन लाला, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मुल्क के दीगर हिस्सों से भी लोग तशरीफ लाए और बड़ी अच्छी तकरीब थी, उसमें उन्होंने शिरकत फरमाया। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर होंगे। मोइन वैकरिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ामुद्दीन व अल्लाह खुश रखे भाई, सबको सलामत रखे। और ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और किचोचा शरीफ में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आरफ मियाँ,
गालिबन आप सरकार महबूब इलाही की बारगाह में होंगे और जाने वाले थे आप। अगर आप पहुंच गए हो तो बारगाह महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया और सरकार अमीर खुसरो में मेरा सलाम और नजरानी अकीदत पेश करिएगा और अपने ननिहाल के लिए ख़ास करके दुआ करिएगा और बिलखुसूस अपने वालिद बुजुर्गवार सरकार ताजुल इस्लाम सैयद निज़ामुद्दीन अशरफ शफीउल जिलानी की सेहत सलामती के लिए दुआ फरमाइएगा। ये सर्दियों का मौसम है और सुनने में आ रहा है कि मुल्क के दीगर शहरों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये वो सब फैल रहा है। तो आप लोग भी अपने आप को बचा के रखें, महफूज करके रखें। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ड्रिंक जो ठंडी पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप ये वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें कि जिससे आपको नुकसान पहुँचे। और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करो, गर्म ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह पहन करके रखें। किचवा शरीफ में भी ठंड अब धीरे धीरे शबाब पर आ रही है और मेरे ख्याल से 10-15 दिन में क्या एक हफ्ते के अंदर काफ़ी यहाँ ठंड हो जाएगी। तो जो लोग किचवा शरीफ का सफ़र करना चाहते हैं इस मौसम में, वो अपने घरों से जब निकलें तो मुकम्मल तैयारी से निकलें, हर तरह की तैयारी से, गर्म सूट, कंबल, ये वो सब ले करके निकलें ताकि रास्ते में उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। सलाम पुनासिया, अल्लाह खुश रखे भाई, सबको सलामत रखे। जाकिर हुसैन महसानिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो बस ये शादी की मसरूफियात थी, इसलिए मैं गुज़िश्ता नहीं आ पाया सैटरडे को, और आज आपके रूबरू हाजिर हूँ। और आप तमाम अहबाब दुआ फरमाते रहिए। अली मलगी, बंकापुर, कर्नाटका, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। रौनक इटावी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई अल्लाह खुश रखे आपको भी। हसनैन, वकारुल हसनैन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दादा पीर अशरफी धारवाड़, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर अगले सैटरडे को यानी शनिचर को हमारी और आपकी मुलाकात होगी। आइए दुआ के लिए हम सब हाथ उठा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाई बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हरमत रूह पैगंबर एक नज़र कुन सुए माह। या अल्लाह तो रहम फरमा, मौला करम फरमा, फضل फरमा। बारेला अपने हबीब के तवस्सुल से सरकार गौसे आज़म गरीब नवाज मखदूम अशरफ के करम से हम सबों के गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। मौला राह हिदायत, राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। पांच वक्ता नमाजी, शरीयत मुतहरा का पायबंद बना, हक कहने, हक बोलने, हक सुनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी आशिकाराने अहले बैत अतहार हैं, जितने भी अहले बैत के खुदाम हैं, गुलाम हैं, उशाक हैं, मौला सबों को सलामत रखना। पंजतन पाक के तमाम दीवानों को सलामत रखना मौला।
اے اللہ ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازی شریعت مطہرہ کا پابند بنا، قرآن عظیم کی تلاوت کے جذبہ عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما، ہر ایک کو صحت کاملہ واجلہ دراز عمر علم نافع عطا فرما، رزق حلال سے رزق عطا فرما، قرضوں سے شبہ دوشی نصیب فرما، بغیر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیف ہانو شکشتہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کیا دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شیئن للہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اتباع اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا فیاض صاحب ماریشس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ خوش رکھے آپ کو بھی بھائی، اور میری طرف سے تمام وہاں احباب کو سلام و دعا عرض کریے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے سیٹرڈے کو، پھر انہی 2 باتیں میں آپ سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔